السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 پارے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ النساء سے آغاز ہوا، مدنی صورت ہے سورۃ النساء، ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی، نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر آتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے بعد یہ سب سے لمبی صورت ہے قرآن مجید کی، جس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، ازواج کی تعداد، وراثت کے احکام، بے حیائی کے خاتمے کا، قتل، محرمات کا بیان اور مسلمانوں کا ناحق مال کھانے کا بیان، بخل کی مذمت اللہ نے فرمائی، یہود کی شرارتوں، مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار رہنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ ابتدا ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے، ایک شخص سے پیدا فرمایا اور اسی سے ان کی بیوی، کس سے پیدا فرمایا؟ ایک جان، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پھر ان سے ہی ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دی، پھر جوڑے بنائے۔ آپ کے ہاں اولاد ہوتی، جوڑا پیدا ہوتا، لڑکی اور لڑکا، جو پہلے پیدا ہوتے بعد میں پیدا ہونے والوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا، جو کٹھے پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی کہلاتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال کو ناحق کھانے سے منع فرمایا، وراثت کے احکام بیان فرمائے۔ علوم وراثت یہ بہت بڑا علم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وراثت کا علم حاصل کرو، علم میراث حاصل کرو، یہ آدھا علم ہے۔ فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص نکلے گا وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ قرب قیامت، اور یہ ایسا علم ہے اللہ رب العزت نے جن جن اپنے بندوں کو اس کی مہارت عطا فرمائی ہوتی ہے ان پر خصوصی اللہ کا فضل اور انعام ہوتا ہے۔ اب وراثت کے کئی احکام ہیں، حصے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام کو خود بیان فرمایا۔ اب یہ جو حصے اللہ نے بیان فرما دیے نا، ان حصوں میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ ان حصوں کے حوالے سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹی کا حصہ بیان کیا، بہن کا حصہ بیان کیا، ماں کا حصہ بیان کیا، دادے کا اللہ رب العزت نے حصہ بیان فرمایا، بھائیوں کا حصہ بیان فرمایا۔ اب جس کا حصہ بنتا ہے اسے جب کہا جائے بھائی تیرا حصہ بنتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے بہنوں میں، باپ فوت ہو گیا، اب اس کی جو وراثت ہے اس کی ورثاء میں تقسیم ہوگی، اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگی۔ پھر وراثت کے جو احکام ہیں اس حساب سے حصے تقسیم ہوتے ہیں۔ اب بھائی کہتے ہیں بہنوں کو حصے کے حوالے سے کیا ارادہ ہے؟ وہ کہہ دیتی ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر سے بہت دیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے حصے لے کے۔ ایسا وہ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ان حصوں کو اللہ نے مقرر فرمایا، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ ایک صورت ہے بھائی جتنا بہن کا حصہ بنتا ہے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، وہ مالک بن جائے گی۔ اب وہ کہے ازرائے شفقت کہ میرے پیارے بھائی تو غریب ہے، کمزور ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا، تو نے حصہ دے دیا جو میرا بنتا تھا، قرآن کے فیصلے پر امن ہو چکا ہے، اب یہ میں پیسے بطور تحفہ کے طور پہ تمہیں عطا کرتی ہوں، قبول کر دو۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں دونوں طرف سے کام ہو جائے، لیکن ایسے بہت کم ہوگا۔ وہی بہن
جو کہہ رہی ہے بھائی مجھے حصہ نہیں چاہیے، اس کے پیچھے وجہ ہے، وہ ڈرتی ہے کہ حصہ مانگ لیا تو کیا سوچے گا، تعلق خراب ہو جائیں گے، جب اسے پیسے آپ دیں گے نا، پیسے پکڑائے جائیں گے، پیسے دیے جائیں گے، تو اس وقت وہی بہن بڑی مشکل سے ہے کہ اس حصے کو دوبارہ لوٹا دے، وہ کہے گی مجھے خود ضرورت ہے ایسے، میں کیوں اسے دوبارہ لوٹاؤں، کیوں کسی کو نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بیان فرمایا، اب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی کر سکتا۔ فرمایا کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ہر بچے کو بیٹے کو بیٹی سے دوگنا دیا جائے گا۔ اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں بیٹا اب عصبہ بنے گا، یعنی جتنا مال ہے حصے نکالنے کے بعد سارا کا سارا بیٹا رکھے گا، صرف ایک بیٹا ہی ہے، اور ایک سے زائد بیٹے ہیں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر کسی کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زائد بیٹیاں ہیں تو ان کو مجموعی طور پر سلوسان 2/3 حصہ دیا جائے گا۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، صاحب اولاد ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو وراثت میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی اولاد نہیں، ماں باپ اس کے باقی ہیں، تو ماں کو ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا، اور جو باقیات ترکہ ہے، وراثت ہے، وہ ساری باپ کو ملے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ بیان فرمایا شوہر کے اور بیوی کے حوالے سے، اور بیوی لاولد ہو تو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا، شوہر لاولد ہو، اولاد نہیں ہے، تو اس کا جو ترکہ ہے 1/4 حصہ وہ بیوی کو ملے گا۔ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد، اولاد موجود ہے تو اولاد کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، ان تمام کا 8واں حصہ نکالا جائے گا، 2 بیویاں، 3 بیویاں یا 1 بیوی ہے، اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے پھر 4تھا حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت کی وفات ہو جائے اور اس کا شوہر موجود ہے تو شوہر کو اولاد کی صورت میں 4تھا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر آدھا حصہ دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، ضابطہ ہے، اسلام کا فیصلہ ہے۔ پھر میت کے جب انتقال ہوتا ہے نا میت کا، تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کفن دفن کا اہتمام کر کے پھر دیکھا جاتا ہے اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں، قرض کی ادائیگی ہوتی مال وراثت میں۔ پھر تیسرے نمبر پہ دیکھی جاتا ہے کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی، اگر وصیت کی ہوتی ہے تو اس کی وصیت پر عمل کیا جاتا ہے، 1/3 حصہ اس کی وصیت میں سے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مال جو ہے مال وراثت یہ اولاد میں تقسیم ہوتا ہے، پہلے کفن دفن، قرضے کا اور وصیت پہ عمل کر کے پھر مال وراثت اولاد میں تقسیم ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 15 اور 16 میں بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کا بیان فرمایا، انشاءاللہ اس کا جو بیان ہے آگے سورہ نور میں آئے گا۔ پھر آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے قبولیت توبہ کا بیان فرمایا، اصول بیان فرما دیے کہ جن کو احساس ہو جائے اپنی توبہ پر، اپنے گناہ پر، وہ توبہ کر لیں تو اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ بیوی کا مقررہ مہر کم ہو یا زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ باپ کی منکوحہ سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک باپ نے 2 شادیاں کی ہیں، کسی تیسری شادی کی ہے، تو جو باپ کی منکوحہ ہے وہ ہما جہت سے دائمی طور پہ بیٹے کے لیے حرام، باپ طلاق بھی دے دے پھر بھی حرام۔ پھر وہ رشتے اللہ نے بیان فرمائے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماں، اس میں ام کا لفظ، امہات، ماں، نانی، دادی، اور اسی طرح اوپر سارے جو اصول ہیں ان سے نکاح حرام ہوگا۔ بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بہنوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے، اور خالائیں ان سے نکاح حرام ہے، بھتیجیوں سے نکاح حرام ہے،
भांजियों से निकाह हराम है, सास से निकाह हराम है। ऐसी मनकूहा जिसके साथ ताल्लुक कायम कर चुका है तो उसकी जो बेटी है उससे निकाह हराम होगा, जिससे सोबत कर चुका है। निकाह किया, सोबत नहीं की, तो फिर उसकी बेटी से निकाह हो सकता है। यह इस तरह होगा कि एक औरत ने पहले किसी से निकाह किया, उसका शौहर फौत हो गया, उसने तलाक दे दी, उसके यहाँ औलाद थी, अब उसने दूसरा निकाह कर दिया। अब ये जो मर्द है जब ये निकाह कर लेगा उस औरत के साथ, उसकी जो बेटी है इस पे हराम हो जाएगी। समझ आई मसला? मसला समझ आया? फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, किसी भी शख्स के लिए ये जायज नहीं दो बहनों को निकाह में एक ही वक्त में जमा करे। दो बहनों को साली से निकाह बीवी की सूरत में हराम है, जमा करना उसे हराम है। अगर बीवी को तलाक दे देता है या फौत हो जाती है तो उसके बाद साली से निकाह हो सकता है, उससे निकाह जायज है, उसमें कोई हर्ज नहीं। मुआशरे में हमारा जिस तरह का माहौल है ना, इसमें हया को मद्देनजर रखना चाहिए। इस तरह के ज़माने में खराबियाँ पैदा हो रही है। कैंट की तरफ एक मोहल्ला है जिसकी खबर मुझे पहुंची, मुझे मेरे अजीज़ों ने खबर दी। वो कहने लगे वहाँ पे एक शख्स सिर्फ इस गम में मर गया, बाप, कि उसकी दो बेटियों ने एक ही मर्द के साथ बैत वक्त में निकाह कर लिया और वो आज़ाद खुश खुश रह रहे हैं। ये खुद मुझे खबर पहुंची। ये क्यों हुआ? इसलिए कि जब निकाह हुआ बीवी से तो उसकी बहन के साथ फ्रेंकनेस बढ़ गई, हिचकिचाहट खत्म हो गई, फिर मामले जिस्मानी ताल्लुक तक पहुंचते हैं, फिर वहां से निज़ाम खराब होते हैं। तो जो इस्लाम का निज़ाम है बड़ा कमाल का है, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। वैसे सारी हो कोई भी हो, इस्लाम ने हुक्म दिया है कि हर एक को दीनी बहन के निगाह से देखना चाहिए, हया बाकी रहनी चाहिए। और फरमाया इससे पहले जो हो चुका अल्लाह ने मुआफ फरमा दिया। इसके ज़िम्मन में एक मसला, इसी तरह ऐसी दो औरतों को जो महरम हैं, उन दो औरतों को जमा करना कि उनमें से एक को मर्द तस्वर किया जाए, उस मर्द का उस औरत से निकाह हराम है, ऐसी औरतों को जमा करना भी जायज नहीं। जैसा फूफी और भतीजी है, फूफी और भतीजी को भी निकाह में एक ही मर्द अपने निकाह में नहीं जमा कर सकता। अब फूफी को जब लड़का तस्वर करेंगे चचा बन जाएगा, चचे का भतीजी से निकाह हराम। अब इन फूफी और भतीजी को दोनों को एक ही वक्त में एक मर्द अपने निकाह में जमा नहीं कर सकता, ये भी हराम है। फिर पांचवें पारी का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगाज फरमाया और मुहर्रमात कतिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बातिल तरीके माल हड़प करने के हैं, जुआ है, इसी तरह रिश्वतखोरी है, झूठी कसम खाकर, झूठी गवाही देकर, डाका डालकर, इनकी मजम्मत बयान फरमाई। फिर जुल्मन दूसरों का माल खाने से मना फरमाया, हसद की मुमानत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द और औरतों के निजाम को बयान फरमाया और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्दों को औरतों पर अफसर बनाया है, कफील बनाया। वो चूंकि खर्चा करते हैं, मुंतजिम होते हैं, तो इसलिए उनकी फौकियत है, यानी घर में जो हाकमियत है वो मर्द की। किनकी अफजलगी है या बेहतर जानते हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है उसके हवाले से बात बयान फरमाई। फरमाया कि ऐसी औरत जिसके साथ खामद का निजाम चल ना रहो, ना फरमान औरत हो, तो उसे प्यार होने से पहले समझाया जाए। दूसरे नंबर पर फरमाया अगर नहीं समझती तो उससे बिस्तर अपना अलग कर लिया जाए। तीसरे नंबर पर तादीबन उन्हें डांटा जाए, झड़का जाए, और अगर इसके बावजूद भी वो अमल नहीं करती, अगर इस्लाह हो जाए तो ठीक, अगर अमल नहीं करती तो फरमाया फिर ये अपनी फैमिली में से मर्द अपनी तरफ से, औरत अपनी तरफ से एक एक मुंसिफ हाकम मुकर्रर कर ले,
फिर वो इन दोनों के दरमियान फैसला करें ताकि मोहब्बत के सिलसिले कायम रहें। इनको समझाएं, उनको बताएं कि आप इकट्ठे रहो, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है उसकी मजबूती बताएं। हमेशा रिश्ते तब टूटते हैं जब तीसरा शख्स कान भरता है, औरत के भी मर्द के भी, तीसरा शख्स। और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बड़ी वईद बयान फरमाई। इसी तरह आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद का हुक्म फरमाया और हुकूकुल इबाद को जिक्र फरमाया। माँ बाप, कराबतदार, यतीमों, मिस्कीनों, पड़ोसियों, मुसाफिरों और अपने मातहत जो अहबाब हैं उनके हुकूक को बयान फरमाया। पड़ोसियों में दर्जा बंदी है, रिश्तेदारों में भी पड़ोसी होते हैं रिश्ते के एतबार से, फिर इसी तरह मोहल्ले के एतबार से भी पड़ोसी है। 40 घर दाएं बाएं आगे पीछे ये पड़ोसियों के घर होते हैं। और पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतनी मर्तबा आए पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से कि मुझे इस तरह महसूस हुआ कहीं विरासत में भी पड़ोसियों को शामिल न कर दिया जाए। ऐसे हुकूक हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक की शान भी बयान फरमाई। फरमाया जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसके लिए जरूरी है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, कि अपने पड़ोसी को नुकसान ना पहुंचाए। फिर आयत नंबर 37 का 40 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुखल और रियाकारी की मान फरमाई, अल्लाह की राह में माल खर्च करने के वाले से इरशाद फरमाया। इसके बाद 43 आयत में सूरह निसा की नमाज के चंद अहकाम बयान फरमाए। फरमाया नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़नी, तो नमाज यानी नशे की हालत में हो तो नमाज मना है। फिर बाद में अल्लाह ने नशा ही मना फरमा दिया। अब नशा को जितनी चीजें हैं, शराब, खमर, जो भी इसकी कैटेगरी में आता है वो सारी हराम। फिर तयम्मुम की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रुखसत जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी उसका जिक्र फरमाया। फरमाया ऐसी हालत हो कि आदमी सफर में है, पानी उसके पास मौजूद नहीं, या कोई कीमतन देता है और इसके पास पैसे नहीं, या इतना पानी है, शिद्दत की प्यास है और वुज़ू भी करना है। अब प्यास अपनी बुझा ले और तयम्मुम से नमाज पढ़ ले, अल्लाह नमाज कबूल फरमा लेगा। कैसा इस्लाम आसानी पैदा करता है कि नहीं करता। शरीयत मूसवी में ये अहकाम थे, इतने सख्त अहकाम थे। एक मैं उसमें मिसाल आपको देता हूं, अगर जिस्म के कपड़े के किसी हिस्से पर निजासत लग जाती ना, उस कपड़े को वहां से काटा जाता था। अब ऐसा नहीं है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े इनाम और इकराम अता फरमा दिए, बड़े पैकेज उम्मत मुहम्मदिया को दिए। जिस तरह ये रमजान है, हम दर्स सुन रहे हैं ना, एक एक घड़ी का सवाब 700 गुना तक लिखा जा रहा है। सवाब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और यही सवाब जब क़यामत वाले दिन खुलेगा तो वहां पे हमें दिली खुशी होगी और अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और उसके अहकाम को मानते हैं, फरमाया कि इताअत करते हैं, तो वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। 4 शख्सियात हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। और अल्लाह फरमाता है वहसुन उलाइका रफीका, ये अच्छे साथी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है महबूब अपनी जान पर जुल्म कर लें, आपके दर पे आ जाए, बख्शिश मांगे, अल्लाह मुआफ फरमा देगा। आप सिफारिश कर दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके बख्शिश मांगे। फिर इसमें एक मुल्ला अली कारी अलैहि ये भी लिखते हैं, फरमाते हैं जो नहीं जा सकता वहां पे, उससे गुनाह हो जाता है, वो कहीं भी है। रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिरतुन फी ब्यूति अहल इस्लाम, फरमाते हुजूर रूहानी तौर पे हर मुसलमान के घर में मौजूद है। वहां तसव्वुर कर ले, या रसूलुल्लाह गलती कर बैठा, तसव्वुर में रोज़ा तो रसूल पे हाजिर हो जाए और समझे कि मैं नबी इस्लाम के रोज़े के सामने अल्लाह से बख्शिश मांगी और कि हुजूर आप सिफारिश कर दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ फरमाए। फिर फरमाया तुम मौत के डर से भागते हो जिहाद से, तो ये बात याद रखो, जहां भी चले जाओ, मजबूत कदमों में भी चले जाओ, मौत आनी है तो वहां आके रहेगी। कभी भी मौत के डर से जिहाद से नहीं भागना। जिहाद बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और आज इस तरह का इस्लामी नक्शा जो लिबरलिज्म तबका है वो चाहता है कि ना कोई सख्ती हो, ना सख्त बात बयान की जाए, हर एक को आजादी राय का हक हो, जिहाद का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया जाए।
और ऐसे कुरान तो अब छप गए हुए हैं जिनमें जिहादी आयात को निकाला गया। ये जुमला तारीखी जुमला में बोल रहा हूं, मुसलमानों की इज्जत और वकार जिहाद में है। जब से मुसलमानों ने जिहाद को छोड़ा है पूरी दुनिया में ज़मीन खार हो गए। नहीं तो इस्लाम ये कहता था, हुजूर इस्लाम जब गए ना खैबर, तो आपका ये मामूल था, आप रात को हमला नहीं करते थे, बताते थे, पहले खबर देते थे भाई इस्लाम ले आओ। अगर वो इस्लाम ना लाते, आप कवानीन मुकर्रर फरमाते, वो ना करते तो फरमाते थे हम मारे। फिर इस्लाम की पावर देखकर कई लोग कलीमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। इस्लाम इतना पावरफुल दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया। फिर जंगी उसूलों के हवाले से ये बात बयान फरमाई, फरमाया जंग का जब माहौल हो ना, तो उस वक्त कोई भी खबर मिले उसको आगे नहीं पहुंचाना जब तक तहकीक ना कर लो। ये उसूल है। इस तरह दहशत पैदा होगी, खौफ पैदा होगा, और जिनके अंदर जज्बा है वो डर जाएंगे। और आज के हमारे जमाने में से कहते हैं सेंसरशिप, यानी आपने कोई बात बयान करनी है, उसकी उस पर कैद लगाई जाएगी कि इसके बारे में तहकीक की जाएगी। इदारा कायम है, वो इसको आगे पहुंचाएगा। हर बंदे के लिए इजाजत नहीं होगी कि उस बात को आगे पहुंचा दे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुआशरती आदाब बयान फरमाए। फरमाया जब तुम्हें कोई सलाम करे ना, अस्सलाम वालेकुम, तो तुम उससे बेहतर अंदाज में जवाब दो। तो हो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, या फरमाया वालेकुम सलाम, यही जवाब आगे लौटा दो। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना उसका वाजिब है। मजमा बैठा है, अब चलने वाला मजमे को सलाम करेगा, मजमे में से एक बंदे ने भी सलाम का जवाब दे दिया तो हक अदा हो जाएगा। अगर उसूलन सारे जवाब दें तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह फरमाया कि जो सवार है वो पैदल चलने वाले को सलाम करेगा, पैदल चलने वाला बैठने वालों को सलाम करेगा। फिर कत्ल खता के हुक्म के हवाले से अल्लाह ने बयान फरमाया, कत्ल खता जब किसी से गलती से कोई बंदा मारा जाए, इरादा उसका नहीं है, तो इस लिहाज से फिर वो उसका कफारा दियत के तौर पे उसे अदा करना पड़ेगा, जो मैंने बयान कर दिया था। 100 ऊँट होंगे या 1000 दिनार या 10,000 दिरहम। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 101 में मुसाफिरों के हुक्म को बयान फरमाया। फरमाया जब कोई मुसाफिर हो 92 किलोमीटर उसने सफर का इरादा किया है, अब वो नमाज कसर पड़ेगा। 4 फर्जों में 2 फर्ज अदा करेगा, कसर पड़ेगा। जैसे ही अपने इलाके से, अपने शहर से निकलेगा, अब वो मुसाफिर है, 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा उसने सफर करना है और 15 दिनों से कम रहना है, तो नमाज कसर पड़ता रहेगा। अगर किसी ने 15 दिनों से ज्यादा रहना है तो इस सूरत में वो पूरी नमाज पढ़ेगा। लोग ये मसला पूछते हैं, मदीना शरीफ जो जाने वाले उम्रे के लिए वो क्या करते हैं, पूरी पढ़ेंगे नमाज या कसर पढ़ेंगे? उसमें भी यही मसला है, क्योंकि उन्होंने 15 दिनों से कम रहना होता है। पैकेज इस तरह का होता है, 7 दिन मक्का में, फिर 5 दिन मदीना में, फिर 7 दिन मक्का में। तो मक्का से मदीना डिस्टेंस भी तकरीबन 350-4 किलोमीटर से अबव है। तो इस लिहाज से जब वहां भी होंगे तो मदीना में भी कसर पड़ी जाएगी और मक्का में भी कसर पड़ी जाएगी। लेकिन जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जाएगी कहीं भी हो तो नमाज को पूरा अदा किया जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिर में ये इरशाद फरमाया अपने अजाब के हवाले से, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाशुक्रों और बेईमानों के लिए है। अगर तुम शुक्रगुजार बनो और ईमान ले आओ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा, वो तो मुआफ फरमाने वाला है। और इरशाद फरमाया कि जब किसी की शादियां हो 2, 3, 4, तो अपनी बीवियों में इंसाफ करे, कोशिश करता रहे। अगर कोई कमी रह गई तो अल्लाह मुआफ फरमा देगा। फिर इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया जो कबीरा गुनाहों से बचता रहेगा सगीरा हम वैसे मुआफ फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अल्लाह